In the last class, we started with maths chapter triangles or congruency of triangles, and I taught you all about the basics of the properties of triangles as well as the you know the basic concepts of congruency. What is congruency, and when can two triangles be congruent? And I also discussed about some ways of proving two triangles congruent. Okay, some tests of congruency, and we studied about the first test in detail, that is SAS, side angle side test. That is whenever in any two triangles, if two sides and the included angles are equal to the two sides and included angle, corresponding two sides and included angle of another triangle, then the two triangles are said to be congruent by SAS test. So this is one of the sufficient conditions for congruency. And in today's class, on based of this, we also studied about uh, the property of isosceles triangle, that is angles opposite to two equal sides of a triangle are equal. Okay, so this was isosceles triangle property, which we already studied in this particular topic in the last video, and we proved that the angles opposite to equal sides in the isosceles triangle are equal in the last you can say video. And today we are going to take this ahead, and we are going to solve some numericals based on SAS test, or maybe general properties of triangles, but slowly we are going to move towards the congruency part, and that too involving SAS test. Okay, so uh, in the first question, triangle ABC, angle A is 180 degree. Let me draw the triangle. Okay, so angle A is 120 degree. This is B, this is C. Also AB is equal to AC. Okay, so it's always advised to draw the figure first by reading the question and then proceed ahead of about how to solve it. Okay, find angle B and angle C. We have to find angle B and angle C. So in this, there is no involvement or use of congruency. There is no use of congruency in this. Why there is no use of congruency? Because there are no two triangles. You don't have to prove something. You just have to find something. Now, since in triangle ABC, AB is equal to AC, AB is equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB. Angle ABC is equal to angle ACB. Why? Angles opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. Right? So which angles are there opposite to equal sides? Now see, the equal sides are AB, just going to highlight it, and AC. So which angle is there opposite to AB? See, if you see in the diagram, opposite to AB, there is this angle, angle ACB, right? And opposite to AC, which angle is there? This angle, which is this angle ABC, right? So in this triangle, since two sides are equal, AB and AC, therefore angles opposite to these equal sides must be equal. That is, angle ABC is equal to angle ACB. Therefore, let angle ABC is equal to angle ACB is equal to X. Therefore, angle ABC plus angle ACB plus angle BAC is equal to 180 degree. Why? Angle sum property.
So angle ABC is 120 degree plus ACB is X, BAC, hey, ABC is also X, I'm sorry, ABC is also X, BAC is 120 degree is equal to 180. X plus X is equal to 2X plus 120 is equal to 180 degree. So 2X is equal to 180 minus 120. So 2X is equal to 120 minus 180 minus 120 is 60 degree, and X is equal to 60 by 2, that is 30 degree. X is equal to 30 degree. Okay, so we found the value of X, that is and X is angle ABC, which is equal to angle ACB, right? So angle B and angle C, therefore we can write that angle B is equal to angle C is equal to 30 degree. Simple. So this is how you need to solve. See, now this question was more of, based on properties of triangle, angle sum property and all basic property. It is not question based on congruency, but this property that angles opposite to equal sides are equal, that is an isosceles triangle property, we proved with the help of SAS, and that's why this question is in this particular part. Okay, okay, next question. Now this is very easy, but what I want is, I want you guys to prove it. Prove that measure of each angle of an equilateral triangle is 60 degree. Okay, so in equilateral triangle, AB is equal to AC is equal to BC. Correct? All the three sides are equal. So first you will write given. Okay, now again I'm telling you this because you're watching this video. Please note down all the details which I'm discussing in the video. What you need to do is you need to solve these questions with me while watching the video. You can pause the video and write down whatever I'm discussing or whatever I'm instructing. Okay, so here in this question, to prove that measure of each angle of an equilateral triangle is 60 degree, you need to write given. What is given? Given is given information basically. Triangle ABC is equilateral. Triangle ABC is equilateral, and therefore AB is equal to BC is equal to AC. AB is equal to BC is equal to AC. Okay, so this is what we know about equilateral triangle. To prove angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree, and proof. So this much you should be able to write in all the question given to prove. If there is any construction, then that and the diagram, and then only you start solving the question ahead. Okay, so in this particular question we know that all the three sides are equal, so we can apply one property. The angles opposite to equal sides are equal, so you will write angle ABC is equal to angle ACB, right? Because AB is equal to AC, therefore angle ABC is equal to angle ACB. Angles opposite to equal sides are equal. Okay, then you will write angle ABC is equal to angle CAB. This one, this angle and this angle are equal. So we first said that this angle is equal to this angle. Then we said that this angle is equal to this angle. That means all the three angles are equal. If all the three angles are equal, then we can say that let each of the angle be x, and by angle sum property x plus x plus x is 180. So 3x is 180 and x is equal to 60 degree. Right? So each angle of equilateral triangle is 60 degree. We can prove without congruency just by using that property of angles opposite to equal sides are equal.
Okay, so you can pause the video right now, solve it as per my instructions which I just gave you, and only then we can move ahead. So you need to solve some of the questions according to my instructions so that you know how to write. If you don't follow my instruction, if you just keep on listening to the video, some students are there who are just bothered about finishing the syllabus, just like school. If I just finish the syllabus, if I don't make you write anything, if I don't give you any challenges, what is the use of all this process? What is the use of joining Banyan or any other teacher for that matter? School is enough, then you finish your syllabus in the school. Why you are coming here? You are coming here because you want to learn how to write, and that's what you need to do while watching my video. Okay, so that I can understand that you are learning with me. You are not staying behind. You are just not looking at the video for formality. Okay, please pause the video and solve it. Done. Let's check the answer. Okay, so see, here they should have written given. Yeah, here the statement is proper. Angles opposite to equal sides are equal. Okay, angles opposite to equal sides are equal. And then angle sum property, here also they could have mentioned angles sum property. So each angle is equal to 60 degree, they have proved here at the end, hence proved. Okay, let's go ahead. You remember this kind of diagram I gave you while teaching correspondence. Okay, so in the figure AE is equal to AD. See this small part, this part AE, it is equal to part AD, and BD is equal to CE. BD, oh, okay. So they are saying BD is equal to CE. Let me see. BD is equal to CE. Prove that triangle AEB, okay, prove that triangle AEB is congruent to triangle ADC. Triangle ADC. I can see these two triangles, but then proving congruent with the given information seems a little difficult. Okay. AE is equal to AD, BD is equal to CE, and we have to prove triangle AEB. Can we draw that triangle AEB? Oh, yes, 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 yes. I think I'm getting the idea. First, let me draw the triangle separately for you. Okay. My separate diagram may not be accurate, but still you can make out which triangles I'm talking about, and that's why I'm drawing it separately. So I'm talking about A, C, D, and A, E, B. Can you see these two, you can say pieces? Can you see these two pieces which are overlapping in the given figure? If I ask you how many triangles are there, you will say triangle ABC, triangle AEB, triangle ACD, triangle CEB, triangle CDB, triangle COE, triangle BOD, triangle COB. So many triangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. I can see 6 triangles here. Out of these 6 triangles, we are just concerned with AEB
and ADC, which I have drawn separately and which you can see in the figure, right? So how to prove these two triangles congruent? Okay, look here. It is very easy. Now see, which test of congruency we have just discussed before this video. We have discussed SAS. SAS we have discussed. So definitely we have to apply SAS test only for proving congruency. Okay, before going ahead, before writing anything, I would want to discuss in the given figure which parts I think are common or equal. Okay, so I feel that AD is equal to AE. Why it is given? Okay, can you see that AE is the green part and CE is the red part? Can you see any other green and red combination? AD and BD. So AB. So I'm talking about this part over here and this part over here. So AE plus CE is AC and AD plus DB is AB. Right? Great. Okay. Uh, One more thing I can see which is common. Now, if you see these two triangles ADC and AEB overlapping each other, there is one thing which is common in both the triangle, which is this angle. Angle A. Can you see angle A lies in both the triangles? Angle A is here also, and angle A is here as well. So we have successfully found three things which are equal in both the triangles. And that's what you need. You need minimum three things which satisfy the given test or criteria for congruency. See here, two sides and one included angle, and here two sides, two corresponding sides and one included corresponding angle are equal to each other. Means the triangle can be proved congruent. Okay, so visually we have understood congruency and we understood that how to prove congruency, but it is time now how to write it. We have to learn how to write it. Okay, so the first thing we will write, and please pay attention. See, every year, I teach congruency to so many children, but many of them, I'm really ashamed to say that many of them, they don't follow my instructions. They don't follow my instructions. When I tell them that, for every proof in geometry you must write given, to prove, then proof, then any construction if you requirement, and then the proof with statements and reasons. And in congruency also you need to list three parts, right, with their proper corresponding names, and then prove congruent, and then write the test of congruency which you have used to prove the two triangles congruent. These all things are very very important, but many students, they don't seem to pay any attention to my instructions. But I think now that we are recording it in a video, it's like it stays with you. If you forget, watch it again, remember what I told, watch it again, remember what I told, and apply it. तब जाके एक क्लैरिटी आएगी और तुम्हारा जो राइटिंग है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, स्पेसिफिकली इन ज्योमेट्री पार्ट. Many students, they still say to me, in geometry we don't like geometry, we don't like proofs, theorems. It's like because you don't want to follow instructions. You think कि तुम इतने शाणे हो कि तुम अपना ही मनमानी करते रहोगे. यहाँ पे मनमानी करने का टाइम नहीं है. You have to do as I told you. Otherwise, you will not get marks in your exam. After all, that is what matters to you, right? मार्क्स ही तो मैटर करते हैं ना तुम्हारे लिए. इसलिए बोल रहा हूँ तुमको बेटा कि अगर तुमको मार्क्स चाहिए तो मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करो. चलो शुरू करते हैं. सो पहले लिखना है गिवन. क्या है गिवन? गिवन है AE इज इक्वल टू AD and BD
इज इक्वल टू सी ई। गिवन मीन्स जो क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है वो। फिर लिखना है टू प्रूव। क्या है टू प्रूव? टू प्रूव है ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। कोई कंस्ट्रक्शन है? नहीं। डायग्राम रेडी है? यस। प्रूफ। सबसे पहले रिमेंबर दिस थिंग, सबसे पहली बात, ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा, whenever you have to prove two parts equal and for that two triangles congruent, you need to write the names of the triangles which you are considering for proving congruent। अगर तुम्हें दो ट्राइंगल्स, दो पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है या फिर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो तुम्हें सबसे पहले वो ट्राइंगल के नाम लिखने पड़ेंगे जिसको तुम्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जिसको तुम कंसिडर कर रहे हो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। ठीक है, डायरेक्टली शुरुआत मत कर देना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। पहले तो दो ट्राइंगल मैंने कंसिडर कर लिया। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे करस्पॉन्डेंस का कोई मीनिंग है, मतलब मुझे ये ट्राइंगल के नाम करस्पॉन्डेंस से लिखने पड़ेंगे, ऐसा ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तुमने अभी तक कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं की है। तो ये जो ट्राइंगल के दो नाम है ये करस्पॉन्डिंग है या नहीं ये मैटर नहीं करता है। करस्पॉन्डिंग है या नहीं ये मैटर नहीं करता है अभी। ठीक है, करस्पॉन्डेंस हम लोग आगे देखेंगे, करस्पॉन्डेंस भी बताऊंगा मैं तुम्हें इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, तो दो ट्राइंगल हो गए ए ई बी एंड ए डी सी। क्या क्या इक्वल है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, क्या क्या इक्वल है इसमें। पहले ए ई बी ट्राइंगल है तो मैं लेता हूं साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। फिर ए ई इज इक्वल टू ए डी। ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए ई इज इक्वल टू ए डी। एंड जो इक्वल है वही लिख रहा हूं मैं। ठीक है, एंड अच्छा ये क्यों इक्वल है ये भी तो लिख लो। ए बी इज इक्वल टू ए सी क्यों है? वाई ए बी इज इक्वल टू ए सी? सिंस, इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा, सिंस ए ई प्लस सी ई इज इक्वल टू ए डी प्लस डी बी। हमने वही किया था ना यहाँ पे, ग्रीन पार्ट प्लस रेड पार्ट इज इक्वल टू ग्रीन पार्ट प्लस रेड पार्ट। ये ग्रीन और रेड क्या है? इक्वल पार्ट्स है। कैसे पता? दिया हुआ है। देखो ये जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट पे मैंने यहाँ पे डबल डैश बनाया है, ये डबल डैश इस डबल डैश से इक्वल है, और यहाँ पे मैंने सिंगल डैश बनाया, दिख रहा है ट्राइंगल में। एक्चुअली सिंगल डैश तो पूरे के लिए बनाया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और सिंबल बनाता हूँ, मैं ऐसा एस बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ भी एस है और यहाँ भी एस है, मतलब ये दोनों पार्ट एक दूसरे से इक्वल है, रेड वाले और ये ग्रीन वाले पार्ट इक्वल है। अगर इनको ऐड करोगे तो जो पूरी साइड बनेगी ए सी और ए बी वो भी तो इक्वल होगी ना। तो उसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ओके, इतना रीज़न इनफ है। ए ई इज इक्वल टू ए डी में सिर्फ लिखो गिवन, क्योंकि ये तो गिवन है। एंड एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई। क्यों? कॉमन। क्यों कॉमन? एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए ई। ठीक है, तो तीन पार्ट हो गए हमारे पास। ऑल यू नीड टू डू टू प्रूव two triangles congruent is to list three parts. If you can list three parts, which are equal to the corresponding three parts of another triangle, then you can check that which test of congruency are they satisfying. और यहाँ पे as per diagram we have two corresponding sides and the corresponding angles included between the sides.
इसके लिए हम कौन सी टेस्ट यूज करने वाले हैं? एसएएस, बट नेचुरल। ओके, देयरफॉर डायरेक्टली लिखो ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, और यहाँ पे थोड़ी ब्रेक मार लो क्योंकि हमें करस्पॉन्डेंस निकालना पड़ेगा। तो ए से करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ए से करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है? ऑफ कोर्स ए। फिर ई से करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे ई है, उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है? डी है। और बी से करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे बी है, उससे करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है? सी है। ठीक है, ए ई बी, ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ट्राइंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, बाय विच टेस्ट? बाय एस ए एस टेस्ट। दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस टेस्ट। ये इसको लिखने का तरीका है। मुझे इसको समझाने के लिए 2 मिनट लगता है जनरली, खुद लिखने के लिए भी मुझे 2 मिनट लगता है, लेकिन मैंने इसको तुम्हें एटलीस्ट 10-15 मिनट लेके इसको समझाया है ठीक से, डिटेल में। वाई? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे ही सम हम लोग 2 मिनट में कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हमें विजुअलाइजेशन पे थोड़ा फोकस करना था कि कहाँ ये दो ट्राइंगल जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कहाँ छुपे हुए ये डायग्राम में, और इनमें क्या क्या चीज इक्वल है, क्या दिख रहा है इक्वल, और इसको लिखना कैसे। ठीक है, सो वी हैव जस्ट प्रूव्ड द फर्स्ट पेयर ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। Congratulations. Let's move ahead. Okay, let's go ahead. ये क्या है? If the altitude from one vertex of a triangle bisects the opposite side, prove that the triangle is isosceles. Okay, let's draw one isosceles triangle first. अच्छा, यहाँ पे बोला है कि prove that one triangle is isosceles. अच्छा, अब एक बात समझ लो, अगर तुम्हें प्रूव करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो इसको पहले ही कंसिडर कर दो कि ये आइसोसेलेस है। ठीक है, मतलब डायग्राम में तो एटलीस्ट कंसिडर कर ही लो। प्रूफ तो हम करेंगे लिख के, लेकिन एटलीस्ट डायग्राम आइसोसेलेस ट्राइंगल का बनाओ ताकि जब तुम इसको प्रूव करोगे तो तुम्हें कोई इश्यू ना आए। ठीक है, क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसको नाम दे देंगे हम लोग ए बी सी, और हमने एक एल्टीट्यूड बनाया है एक वर्टेक्स से, तो वर्टेक्स ए है और वहां से एक एल्टीट्यूड बनाया है ए डी। एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड। ठीक है, अब ये जो एल्टीट्यूड है ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे बी डी और डी सी इक्वल है। ठीक है, सो गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग? व्हाट विल राइट इन गिवन? गिवन दैट इन ट्राइंगल ए बी सी AD is perpendicular to BC जो एल्टीट्यूड है, एंड BD is equal to DC, BD और DC इक्वल है। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? दैट ट्राइंगल ABC is isosceles, that is AB is equal to AC, AB is equal to AC प्रूव करना है। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन है? नहीं। ठीक है, चलो प्रूफ। सो देखो यहाँ ध्यान से, मैंने गिवन लिख दिया है। गिवन मतलब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। हमें क्वेश्चन में तो कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं दिया है। वी हैव नॉट बीन गिवन एनी डायग्राम इन द क्वेश्चन, तो मैंने बनाया डायग्राम, उसको नेमिंग भी मैंने किया। तो गिवन मैं क्वेश्चन के हिसाब से एंड मेरे डायग्राम के हिसाब से लिखूंगा जो मुझे लिखना पड़ेगा। दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रूव। जो मुझे प्रूव करना है वो भी मैं अपने हिसाब से लिखूंगा अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम।
एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन टू प्रूव, अगर कंस्ट्रक्शन है तो, और डायग्राम, ये चीजों का 1 मार्क होता है, 1 मार्क. सो इफ यू जस्ट स्टार्ट रैंडमली सॉल्विंग योर क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम प्रूफ, कुछ भी बिना लिखे, तुम्हारा मार्क्स मैं काटूंगा. और अगर फिजिकली मेरे सामने आए तुम ऐसा घटिया चीज लेके, तो तुम्हारा पेपर फाड़ूंगा. और अगर तुमने आंसर शीट में ऐसा घटिया बिना गिवन टू प्रूफ डायग्राम के अगर सॉल्व किया, तो तुम्हारी फाइल को मैं हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा और तुम्हें एब्सेंट मार्क करूंगा मैं टेस्ट में. ये तुम मेरी तरफ से एक धमकी समझ लो. आई एम थ्रेटनिंग यू. यू नो व्हाई आई एम थ्रेटनिंग यू? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी केयरफुल, स्पेसिफिकली इन ज्योमेट्री. मैं इतना स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, तो समझो सीरियसनेस क्या है मैटर का. ठीक है, तुम्हें कोई आगे ज्योमेट्री लेके कोई पीएचडी नहीं करनी, मुझे भी पता है. लेकिन यू नो ये छोटी छोटी जो चीजें होती है, दैट इज हाउ परफेक्शनिस्ट यू आर इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, हाउ एक्यूरेट यू आर इन स्टेटिंग द फैक्ट्स. ये सारी चीजों का एप्लीकेशन रियल लाइफ में होता है. एंड हियर इन ज्योमेट्री यू आर डूइंग द सेम थिंग. यू आर अप्लाइंग लॉजिक, you are solving a problem, as well as you are being very very specific in the method with which you are solving this question. अगर तुम ऐसे ही इसको मान लो, ये तो कुछ नहीं है, तो ऐसे ही हो जाएगा, मैं ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा. मुझे प्रॉपर जो हमने मेथड सीखी है यहाँ पे डिस्कस की है, जो टेक्स्ट बुक की मेथड है, ठीक है, वही मेथड से मुझे आंसर चाहिए. अगर तुमने ठीक से, इवन तुम्हारे होमवर्क में तुमने अगर बिल्कुल मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया, एक भी सम के लिए क्यों ना हो, तो मैं तुम्हारा पूरा होमवर्क रिजेक्ट करूंगा और तुम्हें वापस वो होमवर्क करने लगाऊंगा मैं. रिमेंबर, दिस इज अ वार्निंग. बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग, ये वार्निंग समझ लेना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चलो, इसको प्रूव कैसे करना है. अब यहाँ पे मुझे प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तभी जाके तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा. लेकिन एक बात समझो, ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करने के लिए कोई भी दो पार्ट्स को, किसी भी ट्राइंगल के या दो ट्राइंगल के दो पार्ट को अगर इक्वल प्रूव करना है, देयर मस्ट बी कॉन्ग्रुएंसी इन्वॉल्व्ड. कॉन्ग्रुएंसी के बिना तो हो ही नहीं सकता ये. ठीक है, ये बात समझ लेना. इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्टली बोला था कि भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, तो हमें समझ गया कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था. लेकिन यहां पे ऐसा बोला नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं ये लोग, ये दो चीजों को इक्वल प्रूव करो, ए बी और बी सी को. तो ए बी और बी सी कौन से ट्राइंगल्स में है, उन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, प्रूव करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये है कि कैन यू लोकेट द ट्राइंगल्स इन विच ए बी एंड ए सी आर देयर, सो वी कैन प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट. कैन यू लोकेट देम? कैन यू लोकेट ए बी एंड ए सी? which triangle do AB and AC belong to? AB and AC belong to triangle ABD and triangle ACD. ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं तुमको, रुको दिखाता हूं. एक ट्राइंगल को मैं ग्रीन में बनाता हूं और एक को रेड में. ठीक है, एक ट्राइंगल है ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल है ये वाला. ये दो ट्राइंगल है हमारे पास. ये दोनों ट्राइंगल को वी हैव टू प्रूव कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इन्हीं दो ट्राइंगल में हमारे दो रिक्वायर्ड पार्ट्स है जो करस्पॉन्डिंग भी है, ए बी और ए सी. ए बी और ए सी साइड्स, यही दो ट्राइंगल के पार्ट्स है. ए बी ग्रीन ट्राइंगल का पार्ट है और ए सी रेड ट्राइंगल का. और ए बी और ए सी को हमें क्या प्रूव करना है? इक्वल. तो हमें ये दोनों ग्रीन और रेड ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल लोकेट कर लिए. अब क्या करना करते हैं हम लोग जनरली? वी राइट इन triangle ABD and triangle ACD. ठीक है, क्या क्या इक्वल है अभी बता देते हैं. चलो,
सबसे पहले AD इज इक्वल टू AD। कैन यू सी दैट? कुछ लोगों के लिए रिविलेशन होगा, रिविलेशन, अरे AD इज इक्वल टू AD, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यस, दे आर इक्वल, क्योंकि AD जो है ये दोनों ट्राइंगल में, ग्रीन और रेड में, AD इज अ कॉमन साइड। कॉमन मतलब वो दोनों में है। AD ABD में भी है, AD ACD में भी है, तो AD कॉमन साइड है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉमन। AD इज इक्वल टू AD। अच्छा, दूसरा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। दिख रहा है? ADB 90 डिग्री है, ADC 90 डिग्री है। ठीक है, दोनों 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ये तो गिवन है। बोथ 90 डिग्री सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, या फिर गिवन भी लिख सकते हैं। ये हो गया। और क्या इक्वल है? DB इज इक्वल टू DC। DB और DC क्यों? गिवन। ये देखो, BD इज इक्वल टू DC, है ना? हो गए तीनों पार्ट। एक दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितने पार्ट्स चाहिए हमें? मिनिमम 3 पार्ट्स। और वो 3 पार्ट्स किसी भी एक टेस्ट को रिप्रेजेंट करने चाहिए या फिर फुलफिल करने चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक पार्ट है ये BD इज इक्वल टू DC, एक ये एंगल है और ये कॉमन वाली साइड है। देयरफॉर triangle ABD, triangle ABD is congruent to triangle ACD। triangle ABD is congruent to triangle ACD। ठीक है, congruent हो गए by which test? by SAS test, by side angle side test। कौन सी टेस्ट से congruent है ये? साइड एंगल साइड टेस्ट। बट इज इट द एंड ऑफ द क्वेश्चन? क्या ये खत्म हो गया क्वेश्चन यहाँ पे? नहीं, हमको क्या प्रूव करना था? वी हैड टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, एंड दैट इज कमिंग अप। ठीक है, अच्छा, करस्पॉन्डेंस है क्या ABD और ACD लिखने में? बिल्कुल है। अब तो तुम करस्पॉन्डेंस देख के ही पहचान जाओगे। A से करस्पॉन्डिंग है, B C से करस्पॉन्डिंग है, D D से करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, सो फाइनली व्हाट आर वी राइटिंग? वी आर राइटिंग देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। और रीजन क्या होगा इसका? CPCTC। इसका फुल फॉर्म याद है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कुछ कुछ स्कूल्स में इसको CPCT भी बोलते हैं। ठीक है, CPCTC या फिर CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो तुम दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। तुम्हारे स्कूल में जो कन्वेंशन फॉलो होता है वैसे लिखो तुम। ठीक है, सो वी हैव प्रूव्ड, we have not only proved these two triangles congruent but we have also proved two corresponding parts of the given triangles equal which were asked in the question। समझ में आया तुम्हें? अब विजुअलाइजेशन क्लियर हुआ, अब गिवन टू प्रूव लिखने का तरीका क्लियर हुआ, प्रूफ लिखने का तरीका क्लियर हुआ, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट क्लियर हुआ। ठीक है, ये सब हम बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। अभी चैलेंजिंग क्वेश्चन जब आगे आएंगे तो हम लोग फटाफट फिर करेंगे उसको। ठीक है, चलो। प्रूव दैट मीडियंस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल आर इक्वल। तो गिवन टू प्रूव और डायग्राम तो मुझे दिख रहा है। गिवन क्या है? ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है। इसका मतलब क्या है? इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है? कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल है और इसमें 3 मीडियन है। मीडियन क्या होता है ये मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल वाले लेक्चर में बताया था मैंने वीडियो में। क्या होता है मीडियन? मीडियन इज a line segment drawn from a vertex to the midpoint of opposite side। मतलब ये जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। A से D को ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। एक ट्राइंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3 मीडियन, हर एक वर्टेक्स से हर एक ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट तक। इसका मतलब क्या है?
कि डी बी सी का मिड पॉइंट है, मतलब बी डी और सी डी इक्वल है। ई ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब ए ई सी से इक्वल है। और एफ ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए एफ बी से इक्वल है। टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ, हमें प्रूव करना है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल में होता है ये, सिर्फ याद रखना हर एक ट्राइंगल में नहीं होता, ओनली इन इक्विलैटरल ट्राइंगल द मीडियंस आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब ए डी बी ई और सी एफ ये इक्वल है एक दूसरे से, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो अब विजुअलाइजेशन की बारी आती है, और बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं इनको प्रूव करने के लिए इक्वल। मैं ये ट्राइंगल को पूरा पीसेस में कट करूंगा और वो पीसेस को अलग से ड्रॉ करके प्रूव करूंगा, ठीक है। देखो पहला पीस, चलो चलो, मैं कहीं और से शुरू करने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं ये शुरू करूंगा यहां से। तो पहला पीस है ये पूरे इक्विलैटरल ट्राइंगल का, वो है ट्राइंगल बीईसी, दिख रहा है तुम्हें बीईसी। अच्छा, दूसरा पीस है, समझ में आया तुम लोग को, बीएफसी। एक रेड ट्राइंगल और एक ग्रीन ट्राइंगल, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग ट्राइंगल से। ये दोनों ट्राइंगल को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। अब तुम सोचोगे सर यही दो ट्राइंगल को क्यों कंसिडर किया। वैसे तो इसमें अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 15 20 ट्राइंगल है इसमें, मैं तो पूरे काउंट भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी हमने यही दो ट्राइंगल को क्यों लिया, तो मेरे पास सॉलिड रीजन है। हमें क्या प्रूव करना है कि सारे मीडियंस इक्वल है। अब तीनों मीडियन को एक साथ मैं दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके तो इक्वल प्रूव नहीं कर सकता, तो मुझे दो दो मीडियंस को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले दो मीडियन जिनको मैं इक्वल प्रूव कर सकता हूं वो मैंने लिए हैं, तुम कुछ और भी ले सकते हो, बट मैंने लिए हैं बीई और सी एफ। बीई और सी एफ ये दो मीडियन है जिनको मैं पहले इक्वल प्रूव करने वाला हूं। तो बीई और सी एफ कौन से ट्राइंगल में आते हैं, ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। बीई एंड सी एफ lie in which triangle, BE and CF lie in which triangle। तो मुझे जो ट्राइंगल दिखे BE और CF वाले, वो दिखे ये ग्रीन और रेड वाले, दैट इज BEC ग्रीन वाला और CFB रेड वाला। और इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके BE और CF को पहले इक्वल प्रूव करूंगा। तो शुरू करते हैं ना पहले, ठीक है, शुरू करते हैं। चलो, गिवन टू प्रूफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, तो मैं सीधा प्रूफ से शुरुआत करूंगा। आई होप यू डोंट माइंड दैट। प्रूफ देखो, तुम अगर किसी के माइंड में ये थोड़ा सा भी डाउट है, मैं क्लासरूम में इतना अच्छा नहीं सिखाता हूँ, नहीं सिखा पाता हूँ, क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शंस, डिस्टर्बेंस, एनवायरमेंटल इश्यूज, जैसे कि क्लासरूम में किसी को ठंडी लगती है एसी ज़्यादा है, किसी को गर्मी लगती है एसी कम है। ऐसा इशू हमेशा नहीं होता, बट कब किसी ना किसी को तो होता ही रहता है, सबको नहीं होता। फिर कोई आवाज़ करता है, फिर बाजू वाली क्लास से आवाज़ आता है, फिर बीच में कोई आ जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है। तो मेरे पास कितना अच्छा टाइम है तुमको देने के लिए यहाँ पे, जो मैं क्लासरूम में नहीं दे पाता हूँ जनरली। मतलब अगर तुम कंपेयर करो कि क्लासरूम स्टडी बेटर है या फिर ये ऑनलाइन, तो मेरे हिसाब से ऑनलाइन। कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन क्वेश्चंस तुम्हारे कोई मैं अराइज ही नहीं होने दूंगा। तुम्हारे क्वेश्चन जो अराइज होंगे ना, पूरा बात समझ सुनने के बाद अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक जरूर है, लेकिन ये इट इज नॉट, यू कैन से, इम्पॉसिबल टॉपिक। और इतने अच्छे मेथड से तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओ, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। चलो शुरू करते हैं। ओके, सो प्रूफ। सबसे पहले
in triangle BFC and triangle CEB। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमें एग्जाम में ऐसा रेड और ग्रीन कलर करने, कलर पेंसिल लेके जाना पड़ेगा क्या? नहीं, अलाउड नहीं है ये। कलर पेंसिल और कलरिंग करना ये सब अलाउड नहीं है। हाँ, तुम अगर तुम्हारे आंसर शीट में अगर कलर्ड पेन से करते हो तो चलेगा, लेकिन उतना टाइम वेस्ट मत करो। मैं कलरिंग भी ये लिमिटेड टाइम तक ही करूँगा, जस्ट टू एनहेंस योर विजुअलाइजेशन। एक बार तुम ब्लैंक फिगर को देख के विजुअलाइज करना सीख गए, फिर ये बार बार कलरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कलरिंग इनिशियली ज़रूरत पड़ता है बिकॉज तुम्हारा विजुअलाइजेशन, तुम्हें वो ट्राइंगल लोकेट करवाने के लिए कलर काम आता है। उसके बाद फिर ये कलर का कोई काम नहीं है ना। एक्चुअली इसको ना मैं अलग अलग करके भी मुझे दिखाना चाहिए कि सपोज ये वाला है तो इसको मैं अलग कर दूं। एक मिनट। वो उप्स, देखो क्या क्या हो रहा है। रुको यार। हाँ, ये ठीक है, रहने दो अभी। मैं अलग करके बाद में दिखाऊंगा, पहले देख लो। बी एफ सी एंड सी ई बी क्या क्या इक्वल है इसमें। सबसे पहले बी सी इज इक्वल टू सी बी, कॉमन। जली बत्ती जली। दोनों में बी सी और सी बी है। बी एफ सी में भी बी सी है, सी ई बी में भी बी सी है, तो बी सी इज इक्वल टू सी बी कॉमन, ऑफ कोर्स। अच्छा, दूसरा क्या है? एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। मतलब ये वाला एंगल रेड वाले ट्राइंगल का ग्रीन वाले ट्राइंगल के ये वाले एंगल से इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल ओरिजिनली ट्राइंगल एबीसी का पार्ट है और एबीसी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, तो एंगल हम लोग लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्राइंगल के पार्ट्स है ना वो। अच्छा, वो तो हो गया। अच्छा, अब क्या? अब एफ बी इज इक्वल टू ई सी। एफ बी इज इक्वल टू ई सी। तुम बोलोगे ये एफ बी और ई सी इक्वल कैसे है? बताता हूं। देखो, ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, हाँ, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी होगा। हाफ ऑफ ए बी क्या है? एफ बी। एंड हाफ ऑफ ए सी क्या है? ई सी। तो ये दोनों इक्वल होंगे। समझ गए? यही रीजन है। अच्छा, तो ये दोनों ट्राइंगल में तीनों पार्ट आ गए। 3 पार्ट मिनिमम चाहिए, तीनों पार्ट आ गए। और ये तीनों पार्ट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कौन सी क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हैं? SAS. Therefore, triangle BFC is congruent to triangle CEB by SAS test. प्रूव हो गए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? एंड देयरफॉर वी कैन से दैट CF और FC इज इक्वल टू FC। अगर मैंने लिखा तो EB, FC इज इक्वल टू EB। अच्छा, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस का ध्यान ऑलरेडी रखा गया है। B से करस्पॉन्डिंग C है, दोनों ट्राइंगल को देखो। F से करस्पॉन्डिंग E है और C से करस्पॉन्डिंग B है। ठीक है, B से करस्पॉन्डिंग B नहीं है, B से करस्पॉन्डिंग C है, C से करस्पॉन्डिंग B। दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की मिरर इमेज है, इफ यू सी देम। ये सब हटा देता हूँ। अब देखो ध्यान से, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की मिरर इमेज है ना। डिफिकल्ट देखना, ये कलर के एड के साथ बहुत इजी है देखना, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। बट यू नीड टू लर्न दैट कंफ्यूजिंग मेथड। ठीक है, सो एफ सी इज इक्वल टू ई बी। एफ सी और ई बी ये दोनों तो एक दूसरे से इक्वल हो गए। अब बचा कौन है? ए डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी पी
सी टी सी। अब क्या करेंगे, और एक कॉन्ग्रुएंसी करनी पड़ेगी अपने को। सो कंसिडरिंग ट्राइंगल, अब देखो मैं फिर से रेड और ग्रीन ड्रॉ करता हूँ, ध्यान रखना, बताना मेरे को कौन सा। एक तो ट्राइंगल है अपना BEC, BEC, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल जो मैं लेने वाला हूं दैट इज दिस वन, ठीक है। BEC लिया मैंने और दूसरा लिया ADC, BEC ADC। कंसिडरिंग ट्राइंगल B, सॉरी, BEC and triangle ADC। अच्छा, मैं BFC और ADC भी ले सकता था, BFC और ADC भी ले सकता था, मतलब इन BFC या CEB में से कोई भी एक ट्राइंगल और ADC या फिर ADB, उनमें से कोई एक ट्राइंगल, ठीक है। क्योंकि मुझे AD चाहिए, AD को BE या CF किसी एक से इक्वल प्रूव करवाना है, तो ये तीनों एल्टीट्यूड इक्वल हो जाएंगे। सो मैंने जो ट्राइंगल लिया है वो ये रेड और ग्रीन वाला है, एंड वील प्रूव दैट कॉन्ग्रुएंट, डोंट वरी अबाउट इट। तो ट्राइंगल BEC हो गया एक, एंड ट्राइंगल ADC क्या है इक्वल, BEC और ADC। देख, सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है, BC is equal to AC, BC is equal to AC, why? Sides of इक्विलैटरल ट्राइंगल, या फिर सिंपली हम लोग गिवन लिखेंगे ना तो भी चलेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन। BC और AC इक्वल है, गिवन है, ठीक है। और क्या है इक्वल, देखो मुझे लग रहा है एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल ACD। ये क्या है, कॉमन एंगल है ना, BCE और ACD दोनों ट्राइंगल में, रेड में भी है ग्रीन में भी है ये एंगल, ठीक है। BC इज इक्वल टू AC हो गया, एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल ACD हो गया, और क्या हो गया बताओ, और EC इज इक्वल टू DC, EC इज इक्वल टू DC। EC किधर है, ये ग्रीन वाली साइड दिख रही है, ये इतनी सी, और DC किधर है, वो ये वाली साइड दिख रही है तुम्हें, ये वाली, ये दोनों इक्वल है ना। ये रेड वाली साइड है DC और ये EC ग्रीन वाली साइड है। अच्छा, ये इक्वल क्यों है, क्योंकि EC किसका हाफ है, AC का, और AC किससे इक्वल है, BC से। तो हाफ ऑफ AC विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अगर AC और BC इक्वल है तो हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ BC भी इक्वल होंगे। AC का हाफ क्या है, AC का हाफ AE है, EC भी है, और BC का हाफ क्या है, DC। तो EC और DC इक्वल है, एंड देयरफॉर तीन पार्ट मिल गए हमें, राइट। अगर ये दो ट्राइंगल में तीन पार्ट अगर मिल चुके हैं, कौन से हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल BEC is congruent to triangle ADC by which test, by SAS test, by SAS test, ठीक है। दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट SAS टेस्ट से। अब क्या करेंगे, that was not our final goal. The final goal is to write BE is equal to AD,
सी पी सी टी सी, मीडियंस को इक्वल प्रूव करना है, तो बीई और एडी को मैंने इक्वल प्रूव किया। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 दे दो, यहाँ पे नंबर 2 दे दो, एंड यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में क्या लिखा है, एफ सी इज इक्वल टू ई बी, और ई बी या बीई किससे इक्वल है, एडी। ओके, तो इन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑल द मीडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, ये हमने प्रूव किया बाय अप्लाइंग टू कॉन्ग्रुएंसीज, एंड बोथ द कॉन्ग्रुएंसीज वी यूज्ड SAS टेस्ट. So this was little complicated because the triangles were overlapping and there was to visualize those equal parts. It is little challenging, and but we did it. So I hope you understood the method, the way of writing, the way of solving, the way of understanding everything I have discussed in detail. Okay. Wow. Here comes the next question. अच्छा, यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो लोग ने सिर्फ एक ही बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया है और फिर सिमिलरली लिख दिया है, सिमिलरली करके आधे में वो लोग ने निपटा दिया है। बट मेरे हिसाब से वो सिमिलरली वाला मेथड सही नहीं है। अगर तुम्हें 2 बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है तो 2 बार दिखाना पड़ेगा। अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 कॉन्ग्रुएंसी के ही तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, ऐसे सिमिलरली करके शॉर्टकट मत मारना। तो कभी कभी टेक्स्ट बुक या फिर जो भी रेफरेंस बुक्स है उसमें ऐसा सिमिलरली करके दिया होता है, बट दैट्स नॉट हाउ आई हैव, दैट्स नॉट हाउ व्हाट आई रिकमेंड। ओके, हमेशा याद रखना, मेरा रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होता शॉर्टकट। मुझे हमेशा प्रॉपर तरीका अच्छा लगता है, वही मैं तुम्हें सिखाता हूँ, भले टाइम लगे लेकिन अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, चलो, ओके, very nice question, and it has got construction as well, and you need to be extra careful while this question। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम्हें स्टार मार्क करना पड़ता है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला अगर एग्जाम में पूछ लिया। तुम करते हो ऐसा? कोई अगर टीचर क्वेश्चन करवाते हैं और वो बोलते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और तुम्हें भी लगता है कि हाँ यार ये तो रियली डिफिकल्ट है, तो तुम ऐसे स्टार मार्क करके उसको वापस वापस रिवाइज करते हो या फिर छोड़ देते हो, और फिर होमवर्क में फिर से वही क्वेश्चन आएगा तो डाउट रेज कर देते हो? क्या करते हो तुम? दैट शोज हाउ व्हाट काइंड ऑफ सीरियसनेस यू हैव एज अ स्टूडेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, सीरियसनेस तो हमें ग्रो करनी है, कोई पैदा नहीं होता सीरियसनेस के साथ, उसको बनाना पड़ता है सीरियस। ठीक है, चलो, तो क्या है नेक्स्ट? इफ D is the midpoint of hypotenuse AC of right triangle ABC। अच्छा, D मिडपॉइंट है, D अगर मिडपॉइंट है तो AD और DC इक्वल होना चाहिए, सही है। प्रूव दैट BD इज हाफ AC। BD AC का हाफ है, ये प्रूव करना है। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें जनरली एग्जाम में आ जाता है तो तुम्हें सपने में भी ये नहीं लगता कि ये कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करना है। जस्ट इमेजिन, ये ऐसा क्वेश्चन है, हमें BD को AC का हाफ प्रूव करना है, और हाँ ये कॉन्ग्रुएंसी का ही क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है। AC हाइपोटेनियस है, AC का मिड पॉइंट D है, और B और D को ज्वाइन किया है, तो BD AC का हाफ है। ये प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें BD को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा E तक, सच दैट BD और D इक्वल है, और फिर C और E को तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मामला थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन टू प्रूफ डायग्राम कंस्ट्रक्शन तुम्हारे सामने है। अभी प्रूफ बताता हूं मैं तुम्हें कैसे करना है इसका। सबसे पहले मुझे BD और AC का रिलेशनशिप चाहिए। अब BD और AC कौन से ट्राइंगल्स में आते हैं, पहले उनको समझ लिया जाए, बाद में हम लोग BD और AC का रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं। तो AC ट्राइंगल ABC का हिस्सा है, और BD को एक्सटेंड करके BE बनाएंगे तो वो ट्राइंगल BCE का हिस्सा है।
अब बी सी ई ट्राइंगल में जो ई डी और ई सी है वो तो कंस्ट्रक्टेड पार्ट है, उसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं, तो वी डोंट नो वेदर दिस एंगल बी सी ई इज अ राइट एंगल और नॉट, बट वी कैन डेफिनेटली प्रूव दैट। ठीक है, अगर वो एक बार प्रूव हो गया, ठीक है, और बी ई और ए सी एक बार प्रूव हो गया कि इक्वल है, फिर हम लोग बी डी को बी ई का हाफ प्रूव कर सकते हैं, और क्योंकि बी ई और ए सी इक्वल है तो बी डी ए सी का भी हाफ हो जाएगा। आई नो मोस्ट ऑफ लोगों का जो ये जो मैंने चीज़ें बताई वो सिर के ऊपर से बाउंस होके गया, इसलिए मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये पूरी गेम मैंने तुम्हें बताई, और इसलिए तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि वाई आई एम सेइंग दैट दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, ये तुम्हें समझ में आएगा इससे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंसिडर ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल EDC, दिख रहा है, ADB एंड EDC दिख रहा है, बनाओ उसको ग्रीन और रेड ताकि तुम्हारा विजुअलाइजेशन थोड़ा सा यूज हो। मन की आंखें खोलिए, नहीं तो आपको तकलीफ होगी बहुत, तुम्हें अपनी मन की आंखों से देखना है इसको। विजुअलाइजेशन मतलब मन की आंखें, ये बाहर वाली आंखों से तो बहुत वाले आंखों वाले अंधे होते हैं, पता है क्या, तुम्हारे सामने चीज है तुम्हें दिखती नहीं है, बहुत लोग होते हैं ऐसे। चश्मा मुंह पे लगा रखा है, बोलता है चश्मा किधर है मेरा, सिर पे रखा होता है किसी का, चश्मा किधर है, नहीं दिखता उनको, ऑब्वियस चीजें नहीं दिखती। कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हम ये मन की आंखें खोलना सीख गए, फिर हमें चीजें क्लियरली दिखने लगेगी। ठीक है, तो दो ट्राइंगल कंसीडर किए, रेड और ग्रीन, जो तुम्हें फिगर में दिख रहे हैं। अब इसमें क्या क्या इक्वल है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं तुम्हें चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, AD इज इक्वल टू CD, AD CD से इक्वल है। क्यों भाई AD CD से इक्वल है? गिवन, क्या गिवन है? D इज मिड पॉइंट ऑफ AC, अगर D मिड पॉइंट है AC का तो AD और CD इक्वल है, सही है ना। अच्छा, दूसरा क्या इक्वल है? दूसरा इक्वल है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EDC, मतलब ये वाला एंगल से इक्वल है। क्यों इक्वल है? याद है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पता है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है? दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स। मैंने यहाँ पे VOA लिखा है, एग्जाम में तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत बोलना सर आपने तो सॉल्व किया था तभी VOA लिखा था, मेरे से कंपैरिजन मत करो, फीलिंग्स को समझो, ठीक है। ADB इज इक्वल टू EDC हो गया। नाउ व्हाट, वन मोर थिंग, DB इज इक्वल टू DE, ये DB और ये DE इक्वल है। वाई? कंस्ट्रक्शन, याद है हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसा किया है कि BD और DE को इक्वल रखा है, D को आगे प्रोड्यूस किया है सच दैट DE इज इक्वल टू BD, और फिर E और C को ज्वाइन किया है हमने, E और C को ज्वाइन किया था, ठीक है, बट वो लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए ADB और EDC के, ये ग्रीन और रेड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास जितनी चीजें होनी चाहिए वो सारी आ गई, सो वी कैन प्रूव कॉन्ग्रुएंट दीज टू ट्राइंगल्स। Therefore, triangle ADB is congruent to, hey, before proving congruent, correspondence. Can you tell me what is corresponding with A? If you are going to tell me E, then you are wrong. You know why? Because AD is equal to CD, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, मतलब A से करस्पॉन्डिंग अगर कोई पार्ट है तो वो C है, ठीक है। B से करस्पॉन्डिंग क्या है? B से अगर कोई करस्पॉन्डिंग पार्ट है तो वो E है, ठीक है। D से करस्पॉन्डिंग क्या है? D इज करस्पॉन्डिंग विथ D। अब समझ में आया? अब मैं अगर ADB लिखता हूं, ADB,
तो उसके सामने करस्पॉन्डेंस वाला ट्राइंगल का नाम क्या होना चाहिए? ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ई। सी डी ई। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे एडीबी लिखा था, यहाँ पे ईडीसी लिखा था, जो गलत है। बट यहाँ पे एट द बिगिनिंग, when you have not proved two triangles congruent, you can write the names of the triangles in any order. But when you have proved the two triangles congruent, when you know that these two triangles are congruent, then you can write the correspondence in proper order, because you know which parts are corresponding with which parts. ठीक है? तो वी हैव प्रूव्ड टू ट्राइंगल्स ए डी बी एंड सी डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तुम बोलोगे इसका क्या फायदा? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है कि बी डी इज हाफ ऑफ ए सी, वो तो इससे होने नहीं वाला। कैसे होगा? सही बात है, यू आर राइट। ये प्रूव करने के लिए हमें एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इतना इजी नहीं है क्वेश्चन। तो थोड़ा ध्यान से देखो। पहले तो ये बताओ, ए डी बी एंड सी डी ई आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस टेस्ट, है कि नहीं? साइड एंगल साइड टेस्ट। अब तो दिख रही है साइड एंगल साइड टेस्ट तुम्हें, रेड और ग्रीन ट्राइंगल। ओके, सो टेकिंग इट अहेड, इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें एक चीज प्रूव करने का मौका मिलता है। देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी। ई सी डी, ये जो एंगल है बी ए डी, वो इससे इक्वल हो गया। क्यों? सी पी सी टी सी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तुम सोचोगे मैंने ये एंगल क्यों इक्वल प्रूव किए? इसका मैं रीजन तुम्हें अभी देता हूं। देखो, अब मैं लिख के देता हूं तुम्हें रीजन। Therefore, AB is parallel to EC since alternate interior angles are equal. ठीक है? Therefore, AB और EC पैरेलल हो गए। Therefore, एंगल ABC प्लस एंगल ACB is equal to 180 degree. Co-interior angles formed between parallel lines are supplementary. Co-interior angles are supplementary. ठीक है? Therefore, एंगल ABC 90 है, प्लस एंगल ACB is equal to 180 degree. Therefore, angle ACB is equal to 180 minus 90. That is 90 degree. 180 minus 90, which is 90 degree. ACB क्या प्रूव कर दिया मैंने? 90। अब पूरी स्टोरी समझाऊं वापस? देखो, मैंने पहले ये दोनों छोटे ग्रीन और रेड ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। उसके पीछे मेरा मोटिव ये था कि ये 1 और 2 जो एंगल है, इनको मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से पहले मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं। और बिकॉज वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का शेप ले रहे हैं, दिख रहा है ये जेड शेप दिख रहा है तुम्हें? ठीक है? तो क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और वो इक्वल है, इसके लिए वो लाइंस पैरेलल होगी। कौन सी लाइन? ए बी और ई सी। और क्योंकि वो लाइंस पैरेलल है, इसलिए को इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब ए बी सी और ए सी बी, ये दोनों सप्लीमेंट्री हो गए। और ए बी सी 90 है, इसलिए ए सी बी भी 90 हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड। यही मैं बात कर रहा था पहले। तो अब तो ए सी बी 90 हो चुका है, अब क्या करेंगे? नाउ वी रीच to the second part of congruency which is to be applied. ठीक है? उसके लिए we need to let go of this mess which we have created. We need our original figure. ठीक है? ओरिजिनल फिगर आ गया। अब क्या? अब आगे का पार्ट बताता हूं मैं तुम्हें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इन triangle ABC and triangle ECB,
सी बी। तुम बोलोगे ट्राइंगल कौन से हैं यार, ये कहाँ से आ गए ट्राइंगल, यही तो चाहिए थे हमको, जॉब मिले हैं। रेड और ग्रीन से बना के दिखाता हूँ। ए बी सी इज दिस वन एंड ई सी बी इज दिस वन। दोनों ओवरलैपिंग है और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि ये मैंने अभी प्रूव किया ये 90 डिग्री है और ये पहले से हमें पता है 90 डिग्री है, लेकिन दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स है, याद रखना। ए बी सी और ई सी बी, इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इससे अपना काम हो जाएगा। कैसे, लेट मी टेल यू। अच्छा, इसमें यार आई थिंक और एक कुछ प्रूव करना था हमें। यस, आई totally forgot about that, and for that I'm just going to say sorry to you, and wait, मेरे पास देखो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, मैंने थोड़ी जगह बनाई है यहाँ पे, और एक CPCTC ऐड करना था जो मैं भूल गया हूँ, विच इज AB इज इक्वल टू CE, CPCTC। क्यों किया पता है मैंने, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। AB इज इक्वल टू CE। अब तुम्हें यहाँ पे काम आएगा ये। सबसे पहले वही लिखूंगा मैं, AB इज इक्वल टू EC प्रूव्ड, प्रूव्ड अबाउट, कहाँ पे प्रूव किया वो अभी CPCTC लिखा ना, ये वाला। दो ट्राइंगल हमने पहले कॉन्ग्रुएंट कौन से प्रूव किए थे, ADB और CDE। ADB और CDE में AB और CE क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो वो इक्वल होंगे ना। क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि इसको यहाँ पे यूज करना है हमें। देखो यहाँ पे यूज किया हमने, ठीक है, ये तो एक पार्ट यूज किया, और क्या है इक्वल दोनों ट्राइंगल में, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ECB, बोथ 90 डिग्री। और क्या है, BC इज इक्वल टू BC, कॉमन। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle ECB। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ECB क्या है, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। अब क्या, अभी भी जो प्रूव करना है कि BD हाफ ऑफ AC वो नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देयरफॉर अच्छा ABC और ECB, हाँ सही है। अच्छा, देयरफॉर आई कैन राइट दैट AC is equal to EB। क्यों, CPCTC दिख रहा है तुम्हें फिगर में, AC किधर है और EB किधर है, वो मैंने इक्वल प्रूव कर दिया CPCTC से। एंड देयरफॉर हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ EB, दोनों जगह हाफ मल्टीप्लाई किया, ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर AC और EB इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल हो, हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल्स, ओके। अच्छा, देयरफॉर हाफ ऑफ AC इज इक्वल टू, EB का हाफ क्या है, EB का हाफ है BD, EB का हाफ क्या है BD, क्योंकि EB क्या है BD प्लस DE, और BD और DE एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। सिंस BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो AC हाफ ऑफ BD प्रूव हो गया, BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये हमारा फाइनल आंसर है, AC इज हाफ ऑफ BD, हेंस प्रूव्ड। था ना ये क्वेश्चन जबरदस्त, कैसा लगा ये क्वेश्चन, मतलब बहुत अलग लेवल का अटेंशन चाहिए इसको समझने के लिए, पूरा
और सिर्फ फाइनल आंसर ऑप्शन में नहीं लिखना है ABCD, ऐसा नहीं है ये, इसको प्रॉपर समझाना, स्टेप्स वाइज प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन दिखाना, विजुअलाइजेशन, कितने चैलेंजेस है। और ये जो चैप्टर है कॉन्ग्रुएंसी, ये स्कूल में ऐसे फटाफट फटाफट खत्म हो जाता है। क्यों? ये सारे सम वो हाथ ही नहीं लगाते। ये क्वेश्चन अगर तुमने कॉन्ग्रुएंसी में नहीं किया, तुम्हारा इंटेलिजेंस कैसे ग्रो होगा बताओ मुझे। These are the kinds of questions which you need to do. And I hope everyone is noting everything down. ये जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाए, सब तुम्हें जब मैं सॉल्व करके मेरा हो जाए, तब तुम्हें वीडियो पॉज करके पूरा लिख लेना है, कॉपी नहीं करना है, खुद सॉल्व करना है। एंड आई होप यू आर डूइंग दैट। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग थिंग। फिर जो मैं होमवर्क देने वाला हूं तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अंडरस्टैंड दैट? ओके, आई थिंक अभी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता है इसमें मैं तुम्हें मौका दूं करने का। Okay, so in the figure, D and E are points on the base BC of triangle ABC such that BD is equal to CE. Already given in the figure, BD is equal to CE. And AD is equal to AE, ये भी दिया हुआ है फिगर में। And angle ADE जो अंदर वाला एंगल है, and angle AED are equal. Prove that triangle ABE is congruent to triangle ACD. Let me look at it, man. मैं इसीलिए ये शेडिंग कर रहा हूं ताकि हमें समझ में आए दोनों कौन से ट्राइंगल है। एक तो ये ग्रीन वाला ट्राइंगल है ABE एंड ACD। Oh my god, what did I do? I'm sorry. मुझे रेड से बनाना था, बना देता हूँ, अभी बना देता हूँ, कोई बात नहीं। Now can you see two triangles? एक रेड है, एक ग्रीन है, दोनों ओवरलैपिंग भी है एक दूसरे से। इनको अलग करके बनाए हम लोग। ठीक है, ग्रीन वाला कैसा दिखेगा देखो। दिस इज हाउ द ग्रीन वन विल लुक लाइक। इसका नाम दे दूं मैं, AEB। एंड रेड वाला भी बना देता हूं। एंड दिस विल बी ADC। एक ग्रीन है, एक रेड है। आर यू क्लियर विद इट? दोनों ट्राइंगल समझ में आए तुमको? ओवरलैपिंग ट्राइंगल्स है। अच्छा, इसमें क्या क्या इक्वल है ये भी देख लो, बहुत ध्यान से देखना इसको। AD और AE इक्वल है। अच्छा, AD और AE, ओके। और क्या इक्वल है? एंगल ADC, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल AEB, ये वाले एंगल्स। वाओ। और क्या इक्वल है? BD इज इक्वल टू EC। अरे BD और EC तो है ही नहीं यहाँ पे। यस, यहाँ पे थोड़ा सा एक यू कैन से एक कैच है जो तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा। बस उतना ही है, बाकी ये ट्राइंगल ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं कॉन्ग्रुएंट। लेट मी राइट एवरीथिंग गिवन टू प्रूव। गिवन इन triangle ABC, AD is equal to AE, BD is equal to CE, angle ADC
या ADE लिखा है, मैंने ADC लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज इक्वल टू एंगल AEB। वो लोग ने AED लिखा है, मैंने AEB लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम एंगल है। मैं AED लिखूं या AEB लिखूं, मैं एंगल E की बात कर रहा हूँ। वॉट मैटर्स इज वॉट लेटर इज इन बिटवीन। ओके, ठीक है, ये दिया हुआ है। एंड टू प्रूव triangle ABE is congruent to triangle ACD। दो ट्राइंगल हमारे सामने हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। प्रूफ, सबसे पहले प्रूफ में मैं ट्राइंगल कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं देखो क्या लिख रहा हूं, BD इज इक्वल टू CE गिवन, एडिंग DE टू बोथ साइड्स। दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड DE। तो क्या हो जाएगा, BD प्लस DE, BD में DE ऐड किया, इज इक्वल टू, बीच में इज इक्वल टू रहेगा, CE प्लस DE। when equals are added to equals the answers are equal, है ना। BD और CE दोनों इक्वल है, उसमें DE दोनों साइड ऐड कर दिया मैंने। DE क्या है, ये जो D बीच वाला कॉमन साइड दिख रहा है ना, वही मैं BD और CE में अलग अलग से ऐड कर रहा हूँ। सो व्हाट विल आई गेट, BD प्लस DE, BD प्लस DE इज BE, ठीक है, विच गिव्स BE इज इक्वल टू DE प्लस E, व्हाट इज इट, CD। BE इज इक्वल टू CD। अब ये जो BE इज इक्वल टू CD है, ये तुम्हारे हमारे ये वाले ट्राइंगल में देखो क्या मिलता है तुम्हें, BE इज इक्वल टू CD। हो गए प्रूव कॉन्ग्रुएंट। कैन यू प्रूव द कॉन्ग्रुएंसी फर्दर, कैसे करोगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव, पहले तुम ट्राइंगल कंसिडर करोगे, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACD, फिर तुम पार्ट्स को लिस्ट करोगे, कितने पार्ट चाहिए हमें, मिनिमम 3, जो है हमारे पास डायग्राम में दिख रहे हैं। AE is equal to AD given, angle AEB is equal to angle ADC given, BE is equal to CD proved, जो हमने अभी लिखा है यहाँ पे, and therefore triangle AEB is equal to triangle is congruent to triangle ADC by SAS test। वीडियो पॉज करके ये पूरा इंफॉर्मेशन लिखो और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो इसको, ये तुम्हें करना है अभी, ठीक है। अभी स्पून फीडिंग नहीं होगा तुम्हारा, मैं कॉन्ग्रुएंसी के ऊपर मतलब तुम्हें इतना अच्छे से डीपली सिखाया है कि अब तुम्हें अप्लाई करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन फास्ट, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट। डन, ओके। ये लोगों ने कुछ मुझे लगता है कि कुछ अलग ट्राइंगल ABD और ACD सेलेक्ट किए, ये दो छोटे ट्राइंगल सेलेक्ट करके प्रूव किया है, बट दैट डजंट मैटर, इफ दैट डजंट मैटर एक्चुअली, इतना लंबा लेके जाके, ओह माय गॉड, ज़रूरत नहीं था इसका। जो मैंने दिखाया तुम्हें आइडिया, जिस आइडिया से हमने डायग्राम बनाया ABE और ACD को प्रूव करने के लिए, वो आई थिंक बेस्ट है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू सेंड दिस एक्सरसाइज बाय होमवर्क फॉर एवरीवन, ठीक है। चाहे तुम CBSE के स्टूडेंट हो, ICSE, तुम्हें ये होमवर्क करना ही पड़ेगा। तुम अब ये समझो, कुछ लोग बोलेंगे अरे सर ये तो अलग बुक से पढ़ा रहे हैं, ये तो अलग बुक है, ये भी बहुत सारे लोगों की चोचलेपंथी देखी है मैंने, अरे ये तो अलग बुक है, ये तो हमारी बुक नहीं है, दिस इज नॉट CBSE, यू नो, लाइक या दिस इज नॉट ICSE। एक बात समझ लो, इफ वेदर इट इज CBSE और ICSE, कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी ही रहता है, कॉन्सेप्ट चेंज होता ही नहीं है। मैथ्स का यही फायदा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में जो कोर कॉन्सेप्ट्स है ना, वो नहीं चेंज होता है। तुम्हारे अगर तुम दोनों बुक्स में CBSE और ICSE की टेक्स्ट बुक खोल के अगर तुम क्वेश्चन कंपेयर करोगे ना, तुम्हें 70% क्वेश्चन तो सेम मिलेंगे, दोनों की एक्सरसाइज में भी, सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी 70 to 80% क्वेश्चन सेम है। सो मुझे प्लीज ये मत सिखाना कि सर ये तो हमारी बुक से नहीं है, वी नो यू नो वी कैन नॉट डू इट, ये तुम अपने पास रखो, ठीक है।
चुपचाप जो होमवर्क मैं भेजूंगा उसको कंप्लीट करना, मेरे कॉन्सेप्ट्स जो मैंने सिखाए हैं उसको यूज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लस जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने वीडियो में तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं आज, यू हैव टू राइट दोज एज वेल, ठीक है, प्रॉपरली, that is your notes, and then solve the homework which I am going to give you. Okay, so see you in the next class. I hope you enjoyed this class. See you in the next class. Bye bye.